Assalamu alaikum, Mariam. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam, Umair. I hope you're fine. I'm good. I'm good. It's a long due session that we have, but nevertheless, it's good that we are having it right now. As a matter of fact, you totally understand कि why are we having this session just to understand the overall criteria and just to understand कि real लाइफ के अंदर या ऑन फील्ड आर्टिस्ट किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को लेके समझते हैं, ताकि जो भी आर्टिस्ट या जो भी कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट या कोई भी क्रिएटिव फील्ड से लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं तो उनको ये पता हो कि यार इस तरीके से हम फ्लो को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ताकि रोड मैप उनको एक पता चले और वो रियल टाइम ये चीज़ें देख सकें कि पाकिस्तान के अच्छे आर्टिस्ट किस तरीके से ग्रो करते हैं, किस तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे होते हैं। बिकॉज when you more likely working for your own self, you need to understand the fact कि आप सिर्फ आर्टिस्ट नहीं होते, आप फाइनेंस के गाय भी होते हो, आप एचआर भी खुद देख रहे हो, तो आप मैनेजमेंट भी खुद कर रहे हो, तो client hunting, lead generation, ये सब खुद देख रहे होते हो. So I'm pretty much sure a lot of people know about you, but just for the audience, if you can introduce yourself so we can move forward. Okay, so my name is Mariam Ali, and I am an associate creative director at Innovative Pixels Art. It's a small startup founded by me and my husband, and he's the creative director. He's like the mind and behind the business and everything. He handles the clients and finances and everything. And I also deal with clients. I also bring in clients into the company, and I'm also an artist. I work on different projects, comics, animations. Yeah. परफेक्ट। तो चलें अब हम इस चीज़ को ही थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इससे जानने की कोशिश करें कि I'm pretty much sure कि you guys started your own startup thing, but उससे पहले you have worked for different companies, ठीक है? Yeah. So what make you think, what make you both think कि नहीं यार this is the right time to start a studio by your own? क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपके पास एक suitable सैलरी होती है, वो टाइम पर आ रही होती है, you don't need to understand या यू don't need to get into the hassle of कि यार हमें फाइनेंस मैनेज करने हैं और हमें ये सारी चीज़ें देखनी विद रिस्पेक्ट टू के पाकिस्तान के इकोसिस्टम के अंदर artists usually survive until or unless they have multiple stream of work, they usually survive. ठीक है, तो किस तरीके से जर्नी रही, where did you start, किस पॉइंट पे आके आपने सोचा कि नहीं दिस इज द राइट टाइम टू स्विच टू अ फुल टाइम entrepreneur, स्टार्ट योर ओन जर्नी? तो अगर थोड़ी सी अपनी जर्नी, अपने रोड मैप के बारे में बताएं, ताकि वी शुड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपका फ्लो रहा, आपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करी, ये सारी चीजें. Yes, of course. So basically, this studio was founded by both of us 5 years ago. At the time, we were, delving into the freelance industry. Ke kya hai? We used to place small orders on Fiverr and Upwork, and then we got our first clients from Fiverr basically. उस time पे हम्म. Upwork का इतना ज़्यादा नहीं था. हम्म. उसके बाद we started working like we were like a team of 3 people. There was another artist on board with us at the time. So like after a year, things started to pick up, and उसके बाद it was good. Things were going great. And then beach mein, me and my husband, I mean, he was not my husband at the time. So we बट were, ही बट ही इज, तो आप कह सकती हैं उसको. yes, now he is. So after that, like, I decided to take a step back because of my parents. We were getting hitched, and it to my father, how our society is like. He's like, it's not appropriate for you to be working with him and stuff. So you should just, do your own thing. So after that, I decided to part ways temporarily. So during like three years, I was hunting for jobs, and then my after that, my first job that I got was at GameStorm Studios, where I used to make 2D assets for games. उधर ही मेरी promotion भी हुई. I got promoted to a senior artist, and then I was also handling a team of artists there. So the thing about being an artist is that हमें लगता है कि it's like a talent given from God, and that you don't have to work anymore on your skills. But that's not the case. You have to keep on practicing anatomy, and you know keep on studying. The learning in this field, it never stops. तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये देखती हूँ कि जो स्पेशली जो जूनियर आर्टिस्ट हैं,
they are very emotional about their art, you know. They're like, जैसा मेरा art style है वो वैसे ही रहे, और इसमें कोई improvement ना आए, कुछ ना आए, and I बस जो employer है, they should just accept my art as it is, you know, without the room for improvement. जबकि ऐसा नहीं है, there's always a room for improvement, and you should always be working on your skills, because that's how you grow. That's how you will be able to, you know, land a successful job that's also high paying. Yeah. टोटली अंडरस्टैंड जो भी आपने पॉइंट बताया ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ज़रूरी नहीं है जब भी आप काम कर रहे होते हैं वर्किंग फ्रीलांस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग हो सकता है वहाँ पे कभी कभार यूजली क्लाइंट्स आते हैं और उनको स्पेसिफिकली आपके ही जॉनरा से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं Exactly. यूजली आपको वो अच्छा लग रहा होता है क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे होते हो जो आपको पसंद होती है बट वर्किंग फॉर क्लाइंट्स अ बिट डिफरेंट क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आर्टिस्ट क्रिएटिव फील्ड अपनी तरफ है लेकिन उसका एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है इधर इफ इट्स फॉर अ सीरीज गेम्स इट्स फॉर एनी मोशन डिजाइन या कोई किसी चीज के लिए जब वो एसेट्स बन रहे होते हैं तो उसका एक बिजनेस मॉडल भी होता है कि वो कहाँ पे यूज होगी उसका क्या आरओआई है कितना पैसा उसमें लगाया जाएगा एंड आर्टिस्ट यूजली शुड नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जरूरी नहीं है कि अगर उन्होंने जो चीज बनाई है वो पहली या दूसरी बार में ही सिलेक्ट हो जाए समटाइम्स विजन बहुत अलग होता है जो आपके पास क्लाइंट होते हैं ठीक है अभी आपने एक और चीज हाईलाइट करी दैट यू स्टार्टेड योर करियर फ्रॉम फ्रीलांस एज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ठीक है Yes. सो उसमें थोड़ा सा मुझे बताइएगा क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल यूजली डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जब आप होते हो ना तो आपको अपना पोर्टफोलियो पहले जमा भी करना पड़ता है सो इट्स नॉट लाइक दैट यू जस्ट गो ऑन अ प्लेटफॉर्म start selling stuff and it's a very different ball game यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता कि if you are on the platform तो आपको रोज जॉब मिल रही है you need to consecutively thought of कि यार मैं किस तरीके से उसको ग्रो करूंगी Hmm. क्योंकि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बताऊं मेरे लिए कभी वो चीज़ काम नहीं करी या मैंने वो चीज़ तरीके से काम नहीं करी बट मुझे ये जरूर पता है ऑनलाइन अगर आपको कभी भी चीज सेल करनी होती है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपकी एक दुकान है और उस दुकान को आपको रोज चमकाना होता है तो Right. यू नीड टू कम टू द पॉइंट कि जहाँ पे आपको ये भी चीजें देखनी होती हैं व्हाट सर्विसेज आई एम सेलिंग एंड व्हाट आर द सर्विसेज बेसिकली जिनकी रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को अपडेट रखना पड़ता है तो थोड़ी सी जर्नी बताइएगा कि व्हेन यू स्टार्टेड फ्रॉम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ठीक है व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स या क्या क्या चीजें जिसका लोगों को ख्याल रखना चाहिए क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ a lot of people thought of it कि हाँ भी इनसे अगर हम पूछें कि आ रहे हैं हाँ ठीक है हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो हर किसी के लिए काम नहीं करता ठीक है अगर इस तरीके से ही हो तो सिर्फ फ्रीलांसर ही हो देर आर नो कंपनीज अगर सिर्फ कंपनीज ही चल रही हो तो फिर फ्रीलांसिंग ना चले और समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि स्टार्टिंग ऑफ आपको जॉब के साथ साथ अपने फ्रीलांस को लेके चलना पड़ता है और जब आपको पता चलता है कि ठीक है नाउ यू हैव सर्टेन नंबर ऑफ क्लाइंट्स ठीक है तो फिर आप उस चीज को मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स अ फुल फ्रीलांस और टुवर्ड्स अ फुल टाइम जॉब एज अ Yes. फ्रीलांसर ठीक है Exactly. तो जब आपने स्टार्ट करा आर यू समथिंग जिसने बिल्कुल ही जीरो से फ्रीलांसिंग के लिए स्टार्ट करा या आपके दिमाग में था कि ठीक है यार मैं सर्टेन टाइम तक जॉब करूंगी देन आई सी के हाउ इट गोस ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको फ्रीलांसिंग में ये होता है कि समटाइम्स यू गॉट अ गुड क्लाइंट ठीक है एंड इट्स अ हाई पेइंग क्लाइंट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि पूरा साल आपका हाई पेइंग क्लाइंट्स का नहीं रहेगा ठीक है Exactly. तो आपको ये देखना होता है कि अगर आप सर्टेन अमाउंट कमा रहे हैं देन यू नीड टू मैनेज द फाइनेंस के अगले 2-3 महीने तक जब मैं लीड्स कन्वर्ट कर रहा हूँ या कर रही होंगी तो वो Hmm. बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो उसको उसमें से थोड़ी चीजें बताओ अपने एक्सपीरियंस को बताओ कि जब आपने शुरू करा क्या प्रॉब्लम्स आए उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करा क्योंकि लोगों को अभी सिर्फ ये लग रहा होता है कि फ्रीलांस कर रहे हैं ना तो बस सब कर रहे हैं और सबको पैसे मिल रहे हैं बट Yes. व्हाट्स द Yes. हार्श रियलिटी ऑफ दैट So I had my job at the time. मैं जॉब छोड़ी नहीं थी, सही है, मैंने साथ में अपवर्क भी उसको मैं ऑप्टिमाइज करी थी, राइट. I had put in a few money from that I had from my job into Upwork Connects. I built my portfolio on Upwork. उधर मैंने अच्छा खासा उसको ऑप्टिमाइज किया. मैंने कहा I had like categories for everything. Like I had categories for character illustrations, then I had category for logo design, then I had a category for background, you know, stuff like that. तो उससे फिर ये होता है कि जो भी क्लाइंट को जो उसकी स्पेसिफिक नीड है, like they can just look at your profile and then they can, you know, reach you out according to their need.
तो अब ये है कि yes, in the start it was not easy at all. I did lose a lot of money as well, like, and then like over time, because I kept optimizing it and because I got good reviews from clients, तो उससे मेरी जो profile है, it started, booming in a way. So ठीक है। yeah. अच्छा, एक और चीज बड़ी बड़ी क्रूशल होती है व्हेन वी आर फ्रॉम दिस क्रिएटिव फील्ड, कि उसमें ना आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना आना चाहिए। सो इट्स नॉट व्हाट्स इन योर पोर्टफोलियो, समटाइम इट्स बिकॉज कि आप जिस क्लाइंट को पिच ऑन कर रहे होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। समटाइम यू आर गेटिंग डिफरेंट क्लाइंट्स विद अ डिफरेंट नीश। ठीक है, Yeah. हो सकता है आपने उसके उसके अंदर कभी काम ना करा हो। ठीक है, Hmm. अगर मैं एग्जांपल दूं तो हो सकता है अगर मैंने कभी किसी फिनटेक के लिए काम नहीं करा हो तो मोशन डिजाइन की एग्जांपल सेम हो, लेकिन फिनटेक की मोशन डिजाइन डिफरेंट होगी। और अगर मैं किसी और तरीके की मोशन डिजाइन कर रहा हूँ तो वो बहुत अलग होगी। कमर्शियल साइट्स की बात करें, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कि आपके साथ भी होता होगा। जो सबसे बड़ा मसला मैं देख रहा होता हूँ, द न्यू अपकमिंग आर्टिस्ट यूजली दे डोंट नो हाउ टू मेक द होल पोर्टफोलियो, नंबर वन। एंड नंबर सेकेंड, व्हाट आई एम सीइंग के मार्केटिंग इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। आप अपने आप को मार्केट कर कैसे रहे हो, तो ठीक है, देयर आर प्लेटफॉर्म्स। अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो आज से 2-3 साल पहले यूजली इंस्टाग्राम वाज अ बिग थिंग। ठीक है, आर्टिस्ट के लिए अभी भी है क्योंकि इट्स अ पिक्टोरियल थिंग, वहां पे यूजली आप अपना आर्ट डाल सकते हो, बट नाउ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स लिंक्डइन। And now they are also trying to pitch more clients, and not only clients, sometimes we are seeing कि companies को project basis employees चाहिए होते हैं, because to be very honest अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान के अंदर अभी as such कोई big productions नहीं चल रही होती कि आपके पास 24/7 काम रहे। ठीक Hmm. है, सो यू नीड टू मेक अ स्पेस कि ठीक है यार, अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ तो मुझे इसके अलावा और लीड्स चाहिए होंगी जो कि करंट सिनेरियो में रहें और उसके बाद में काम करूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मुझे बताओ, वेयर डू यू पुट ऑल योर पोर्टफोलियोज? पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं? क्योंकि कितनी मरतबा ऐसा होता है कि आई डू हैव सम ओपनिंग्स या मैं देख रहा होता हूँ, तो यूजली पीपल व्हाट पीपल डू इज जस्ट गिव अ गूगल ड्राइव लिंक, Yeah. एंड उसके बाद वो उनको लगता है कि दिस इज अ राइट थिंग। ठीक है, जस्ट फॉर द ऑडियंस, गूगल ड्राइव इज नॉट एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को भी चीज दे रहे हो तो अब अगर मैं बात करता हूँ डिजाइन की, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप ये कहना चाहते हो कि मैं डिजाइनर बहुत अच्छा हूँ या मैं आर्टिस्ट बहुत अच्छी हूँ। और अगर अब आपका पोर्टफोलियो में जाके खुद ही उसको सब सर्च करना है, क्योंकि हो सकता है आप गूगल ड्राइव को एज अ सेकेंडरी लिंक यूज कर सको कि ठीक है यार, मीन वाइल मैं उसमें सारी चीजें डंप कर दूंगी या कर दूंगा और उसके बाद उसको अपने प्लेटफॉर्म पे प्रॉपरली अपलोड कर दूंगा विद ऑल द केस स्टडी, किस तरीके से बनाया, क्या थॉट प्रोसेस था, बिहाइंड द सीन्स क्या थे, इसके फर्स्ट स्केच क्या थे। आप अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करते हो? कौन से प्लेटफॉर्म है? हाउ डू यू थिंक केस स्टडीज वर्क? क्या आप उनमें से हो जो अपने काम को शोकेस करना अच्छे से दिखाना इज इम्पोर्टेंट समझते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं कि यार ठीक है, हमने बना ली एक चीज, उसके स्नैपशॉट्स लगा दिए एंड दैट्स एनफ। Hmm. बट समटाइम्स व्हाट आई थिंक इज कि हो सकता है आपका छोटी सी मोशन या आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट जो होता है उसके पीछे बहुत दिमाग लगा होता है, Hmm. उसके उसके पीछे ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई हुई होती है, Exactly. कभी कभार 2-3-4 महीने की मेहनत होती है कि ठीक है यार ये रेफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें। सो हाउ डू यू मैनेज योर पोर्टफोलियो? व्हाट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ पोर्टफोलियो फॉर यू? एनी आइडिया, एनी एडवाइस दैट यू वांटेड टू गिव? ओके, ये आपने बात सही की। काफ़ी हमारे पास भी पोर्टफोलियोज आते हैं आर्टिस्ट के। They're so disorganized. Like you just open it and you're like, okay, what am I looking at, right? और कभी कभी ऐसा होता है कि for example where we have a positioning open for a 2D artist, हम्म। right? और an animator, तो उसमें सिर्फ graphic designers भी आ जाएंगे, but that's not what we're looking for, right? जैसे आपने बोला कि people should apply for jobs or that are relevant to what they do हम्म। exactly. तो मैं जो हूँ अपना पोर्टफोलियो इस तरह मैनेज करती हूँ कि आई डोंट जस्ट स्लैप इमेजेस, आई डोंट जस्ट स्लैप एन आर्ट वर्क, ओ लुक एट माई आर्ट वर्क, इट्स सो प्रिटी। नहीं, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू शो द होल प्रोसेस बिहाइंड इट। आपने स्केच डालना है सबसे पहले, देन यू हैव टू पुट इन द रिफाइंड लाइन वर्क, देन यू पुट इन कलर्स एंड देन शेडिंग, फिर उसमें जो लाइटिंग है वो। इससे होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है और जो आपका क्लाइंट है उसको बेटर आइडिया हो जाता है कि ओके, सो दिस इज हाउ दिस पर्सन डज देयर वर्क एंड देर आर प्रोफेशनल, हम्म। दैट्स हाउ, so they can trust you, with their project or with the job.
ठीक है। एनी Also one more thing that I want to mention, जो आप कह रहे थे कि गूगल ड्राइव लिंक्स लोग भेज देते हैं, there are so many, you know, platforms where you can upload your work. There's ArtStation, there is Behance. आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, but you can just, you know, use these platforms instead. तो उसमें बस ये है कि छोटा सा आप लिंक भेज दो to your client, yeah. बिल्कुल, उसका मेन मकसद भी यही होता है, क्योंकि ठीक है, अगर मैं उसको कैटेगराइज करूं तो ठीक है, वेबसाइट होना इज अ वेरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप किसी चीज से कमा रहे हैं तो आई थिंक उसको पॉजिटिव वे में इस तरीके से देखें कि वो एक अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज वट एवर यू सेल, आपका वर्चुअल पर्सनैलिटी बहुत कुछ होती है। ठीक है, अगर आपकी आपकी वेबसाइट होती है, सबसे पहले तो वेबसाइट होना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जैसा भी आपने बताया मरियम, के आर्ट स्टेशन है, बेहांस है, ड्रिबल है, दे आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जाके बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो सेट कर सकते हैं। एडोबी इज ऑल्सो हैविंग दिस ऑप्शन ऑफ मेकिंग योर ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, Yeah. उससे 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 फायदा ये होता है कि थोड़ा सा ना आप एक मिड लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं। अगर कोई भी आपकी प्रोफाइल देख रहा हो तो उसको पता चलता है कि ठीक है यार, ये अपने काम के लिए सीरियस है, ही नोज और शी नोज अबाउट व्हाट शी इज डूइंग। ठीक है, ऑल्सो व्हाट यू हाईलाइटेड इज के प्रोसेस दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टू टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट आई पर्सनली बिलीव के जरूरी नहीं है कि हर हायरिंग मैनेजर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसी भी That's एमएनसीज की, क्योंकि नाउ अडेज व्हाट आई एम सीइंग इज अ लॉट ऑफ कंपनीज वांट आर्टिस्ट टू वर्क विद देम, बट ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस नहीं है या वो फिल्म स्टूडियोज नहीं है जिनको पता हो कि फ्लो क्या होता है। दे यूजली हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है यार, ये 2D है तो उसके लिए 2D आर्टिस्ट चाहिए, ये 3D है इसके लिए 3D आर्टिस्ट चाहिए, बट ऑल द 2D एंड 3D हैज अ प्रोसेस इन इट, जिसके अंदर आपकी पेंटिंग होती है, स्केचिंग होती है, फाइनल रिजल्ट्स होते हैं। और जब भी आप अपने आप को उस तरीके से सेल ऑफ कर रहे होते हैं तो आपका प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ ये भी जरूरी होता है, ये पता चलता है कि ठीक है, ये प्रोसेस है, इतना टाइम या इतनी चीजें क्यों लगेंगी, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है। जो नेक्स्ट चीज मुझे आपसे पूछनी है, दैट इज प्राइसिंग। ठीक है, सम टाइम पीपल यूजली डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, कि आपको किस तरीके से अपने आप को कोट करना होता है। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड दे से कि वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी और वी गॉट दिस फ्रीलांस प्रोजेक्ट, हाउ मच वी चार्ज। एंड आई पर्सनली आस्क देम कि यार, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर वर्क एंड हाउ यू सेल योर स्टफ। ठीक है, हो सकता है कि अम, किसी के लिए लोगो डिजाइन 500 रुपए की चीज और किसी के लिए लोगो लोगो डिजाइन 5,000 की हो, और वाइस वर्सा, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में it बात करते depends हैं। on the quality as well, right? Exactly. But It depends upon the quality. So my question is, before whenever you are quoting something, ठीक है, क्योंकि वी आर एट दैट पॉइंट जहाँ पे हमें पता होता है कि जब क्लाइंट हमें रीच आउट करता है या हम क्लाइंट को कभी रीच आउट करता है, so you need to understand the fact कि हर चीज में सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है यार, अभी मैं फारिग हूँ, अभी मेरे पास कुछ करने को नहीं है, लेट्स से 5,000 रुपीज, assumption is a fact। ठीक है, यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट कि उसके अंदर रिविजन्स होंगे, उसके अंदर अडेप्टेशन होंगी, अडेप्टेशन का यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट कि कोई बंदा फ्रीलांस से काम कराना क्यों चाहता है, वाई ही इज नॉट और शी इज नॉट हायरिंग अ प्रोडक्शन हाउस। ठीक है, क्योंकि उनको काम तेज चाहिए होता है, उनको ये चीजें समझनी होती है कि प्रोसेस जल्दी हो जाए। ठीक है, और समटाइम्स ये यूजली डोंट वांट टू बिकम एन हैसल, कि उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता। सो फॉर मरियम, क्या एडवाइस दोगी मरियम, कि अगर कोई भी बंदा कोटेशन दे रहा है, ठीक है, कोटेशन देना चाहता है, उसका राइट वे क्या होता है, से ये किस तरीके से कोड करना चाहिए, प्रोजेक्ट को समझना कैसे चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत मरतबा ये लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी एंड दे से कि अगर मैं बहुत छोटे स्केल पे बताऊं, ठीक है, वी yeah. वांटेड टू डू अ 15 पोस्ट एंड 3 जिफ्स, हाउ मच वी कैन कोट। मैंने कहा यू कैन कोट फ्रॉम 30,000 टू 1 लाख रुपीज, बट दैट डिपेंड्स कि हाउ यू गोना सेल इट। ठीक है, सो फॉर मरियम, हाउ डू यू डू दैट, व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट यू थिंक जब आपको कोई ब्रीफ मिलती है, क्योंकि डी ब्रीफिंग इट सेल्फ अ वेरी बिग टास्क। अ लॉट ऑफ पीपल यूजली डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ब्रीफ मिलने के बाद उसको डी ब्रीफ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी मेहनत लगेगी, कितना टाइम लगेगा। तो हाउ Exactly. यू डू दैट थिंग, एनी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दैट? So usually जैसे ही प्राइस कोटेशन की बात आती है, most artists they, you know, they start freaking out कि oh,
आई से कि टेक योर टाइम, यू नो, टू मेक द डिसीजन। वो जो आपने बात की है कि डी ब्रीफ करो उसको, जो उसने आपको ब्रीफ भेजा है, जस्ट गौर से पढ़ो एंड जस्ट सी, यू नो, हाउ मच ऑफ योर एफर्ट विल गो इन टू दैट अ सर्टेन प्रोजेक्ट। उसके हिसाब से देन यू नो यू कोट योर प्राइस टू द क्लाइंट। और हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट का बजट नहीं होता, या उससे उसके बजट से एक्सीड हो रही होती है चीज़, देन यू नो योर वैल्यू एंड यू नो योर वर्थ, कि आप जो भी आप सेल कर रहे हो, यू नो, इट इज़ ऑफ क्वालिटी। तो आप उसके हिसाब से ही उसको फिर अपनी प्राइस कोट कर दोगे। समटाइम्स देर इज ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम बैक एंड फोर्थ भी हो रहा है, क्लाइंट्स लाइक नहीं हमें इतने में चाहिए, एंड देन यूर लाइक नहीं मैं इतने में करता हूँ। सो यू हैव टू लाइक फाइंड अ मिडल ग्राउंड, को ऐसी प्राइस दैट इज, यू नो, बेनिफिशियल टू यू बोथ। ऐसा ना हो कि आपने ऐसी प्राइस कोट कर दी कि आपका तो लॉस हो गया, यू नो, आपने इतनी मेहनत की एंड देन यू आर जस्ट लाइक गेटिंग नथिंग। परफेक्ट। अच्छा, मुझे एक चीज और इससे लिंक्ड अप होती है कि a lot of designers and a lot of artists, they usually think that they are a one man army. ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ कि हमारे यहाँ, और मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की अगर बात करूँ, पीपल यूजली डोंट वांट टू कोलैबोरेट। ठीक है, दे थिंक कि अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट आया है तो वो पूरा प्रोजेक्ट उनको ही करना है। ठीक है, और अगर वो नहीं करेंगे तो शायद उनकी टाइमलाइन सफर करेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हर बंदे का माइंडसेट एक ही हिसाब से चलता है। ठीक है, हम्म। और वो एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स ही काम कर सकता है दिन में। ठीक है। हम्म। अब अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, आई सी अ बेल कर्व। ठीक है, हो सकता है कि कभी आपके पास काम ना आ रहा और एकदम से आपके पास काम आता है, तो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि अगर अगली मर्तबा इस तरीके का पॉइंट आएगा तो मेरे पास वो कौन से आर्टिस्ट हैं जिनकी मैं हेल्प आउट ले सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि कोलैबोरेटली आपको काम करना होता है। समटाइम्स आप किसी को ये समझा नहीं सकते कि ओके फाइन यार ये इतना टाइम लेगी, क्योंकि समटाइम्स थिंग्स आर टाइम टाइम कंसर्न होती है उसमें। अगर किसी हम्म। इंसान को कोई चीज 4 दिन या 5 दिन या फॉर एग्जाम्पल 15 डेज के अंदर चाहिए, तो उसके लिए वो 15 डेज के अंदर होना जरूरी है। 15 से 16 डे पे जाएगी तो वो किसी काम की नहीं है। अगर मैं बात करूँ किसी प्रोडक्ट लॉन्च की, ठीक है, हम्म। अगर किसी प्रोडक्ट लॉन्च की कोई एनिमेशन है जिसका प्रोडक्ट लॉन्च 10 दिन बाद होना है, ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप कोड तो कर देते हो। ठीक है यार, मैं ये थॉट प्रोसेस रख के बहुत सारे आर्टिस्ट कोट कर देते हैं कि ठीक है यार हम ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे क्योंकि टाइम कम है। बट वो ये चीज हम्म। नहीं समझते कि ज्यादा पैसों का मतलब ये भी है कि यू नीड टू वर्क एज मच एज यू कैन। ठीक है, तो उसमें अच्छी चीज ये होती है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी नाउ यू हैव टू रिसोर्सेज, यू एंड योर हस्बैंड, सो यू हैव एन आइडिया कि अगर कहीं ना कहीं मुझे रिसोर्स की जरूरत होगी, बट यू ऑल्सो चिप इन फ्यू पीपल व्हेन यू गेट गुड we क्लाइंट्स। have we have a team of artists on board as well, like we have artists in the studio and as well as on remote. तो दैट्स So we have, व्हाई व्हाई यू हैव दोस पीपल, क्योंकि यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है ना कि ठीक है यार, मैं मेरे पास तो काम आ रहा है, मैं किसी को काम लेने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा बताओ, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस फील्ड के अंदर बिजनेस रन करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, that's true. क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी, जहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज बेचनी है दाल चीनी की तरह जो कि रोज लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, Hmm. समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये फील्ड समटाइम्स गुड टू हैव होती है, मस्ट हैव नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे मस्ट हैव को अगर मैं कहूँ तो हो सकता है एक प्रोडक्ट डिजाइनर के बगैर प्रोडक्ट नहीं बन सकता, लेकिन एक 2D एनिमेशन वीडियो के बगैर चीजें बन सकती हैं, चल सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, बट उसमें जरूरत ही होती है। सो एनी रीसेंट स्टोरी जिसकी वजह से आपको लगा कि ठीक है यार, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर यू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टीम, नाउ यू हैव पीपल ऑन रिमोट एज वेल, इन योर इन हाउस टीम एज वेल, तो Yeah. क्यों रखा, क्या जरूरत पड़ी, कोई एनी एनी आइडिया, क्या इस क्लाइंट के टाइम पे ऐसा कोई वाकया हुआ कि यार तब हमें लगा कि नाउ दिस इज द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस मोर पीपल इनटू द टीम। So as we started getting more orders, obviously it was getting difficult to manage all these things all at once. Then we started reaching out to people, you know, who wanted jobs at the time, और उस टाइम पे डिजिटल आर्टिस्ट और जो आर्टिस्ट थे, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा जॉब्स थी नहीं अवेलेबल, राइट? सो दे वर वेरी थ्रिल्ड टू वर्क विद अस बिकॉज दे फाउंड मीनिंग, यू नो। एक तो ये बात है कि ओके, कुछ मिल रहा है उनको, यू नो, अपनी फील्ड से रिलेटेड, and they are very passionate about it. So yeah, that's how we started outsourcing to.
different artists as well. तो कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि we did not get the quality that we needed and then we had to fix it ourselves. जैसे मैं खुद फिर उसको ठीक करती थी, कोई प्रोजेक्ट है जैसे obviously because client को तो आपने quality देनी है, right? हम्म। Yeah, and then we used to give feedback to artists as well कि भाई ये areas हैं यहाँ पे आपको improvement की ज़रूरत है. हमारे यहाँ पे in-house training भी हुई artist की, जिसमें we would like sit and we would like practice drawing for 1 hour, 2 hours. So yeah. अच्छा, ये इससे एक और चीज ये इम्पोर्टेंट भी है जो भी आपने बताई, और आई एम प्रीटी मच श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक अमीर अली, उमर नजीब, दे आर आल्सो डूइंग गुड थिंग्स, क्योंकि आई Amin एम Ali, I've taken his workshop so at IB. Yeah. that's the thing. जैसे अमीर अली हो गए, he also my one of he is my uh, mentor, and उमर हो गया, उमर नजीब हो गया, या और भी बहुत सारे लोग हैं, सऊद है, इस तरीके से जितने भी लोग हैं, नाउ दे आर ऑल्सो डूइंग वर्कशॉप्स, क्योंकि आर्टिस्ट को ग्रो करने का मेन तरीका ही यही है। क्योंकि अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 4 साल सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट पढ़ाती होगी। ठीक है, और लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि इन माय ग्रेजुएशन व्हाट आई आस्क ऑफ फॉर, मैंने अपने टीचर से चीज पूछी कि आप 6 महीने का कोर्स है कॉन्सेप्ट आर्ट का, डू यू थिंक कि वो पढ़ा सकते हैं? तो उन्होंने बोला देखो, कॉन्सेप्ट आर्ट इज अ थिंग जिसके लिए शायद लोगों को जिंदगी लग जाती है। ठीक है, Abs- एंड इट्स समथिंग जिसके अंदर सिर्फ ड्राइंग नहीं है, इसके अंदर फिजिक्स है, इसके अंदर केमिस्ट्री है, इसके अंदर आपको बॉडी टाइप्स पढ़नी है, इसके अंदर आपको डायनामिक्स सीखने हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें। ठीक है, मतलब ये इतनी इतनी डिटेल चीज है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 3D आसान हो जाता है बनस्बत इसके कि आप करेक्टर 3D या 2D की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि करेक्टर इटसेल्फ इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब उसमें एक जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट उठकर आता है, जो कि पिछले 2 साल से चल रहा है, एआई आ गया है, आर्टिस्ट खत्म हो जाएंगे, एआई आ गया है, आपको ये चीज कर लेंगे। दिस डिबेट, व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? डू यू थिंक एआई इज ऑन दैट कैपेबिलिटी राइट नाउ जहाँ पे आर्टिस्ट खत्म हो जाएंगे? क्योंकि मेरा एक थॉट प्रोसेस है, मुझे ऐसा लगता है कि एआई इज देयर टू हेल्प आर्टिस्ट। That's इट्स true. I इट्स I am also a glass half full sort of person, despite being an artist. I've seen so many artists, having rage over this thing कि oh shit, no AI आ गया, अब हम क्या करेंगे? ये तो हमें replace कर देगा. No AI के posts हैं, which is it's a very a controversial topic, especially for artists. Like if an artist agrees ke okay, I think that AI cannot replace authenticity, it cannot replace intent, you know मेरे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मरियम, हमें इसलिए हाईलाइट कर लिया जाता है, अगर मैं बात करूं गिबली इफेक्ट की। ठीक है, ठीक है, वो एक ऐसी चीज थी जो लोग खुद से नहीं बना सकते थे, और जब लोगों को पता चला कि यार एक प्रॉम्प्ट उसको बना के दे रहा है, तो तब शायद आर्टिस्ट का या डिजाइन की तरफ चीजों का ज्यादा हुआ। मुझे कंफर्म पता है कि मल्टीपल ऐसे एआई सॉफ्टवेयर्स होंगे या ऐसे एआई प्लगइन्स होंगे जिससे आप दूसरी रिसोर्सेज का काम आसान कर सकते होंगे। कंटेंट राइटिंग है, सोशल मीडिया है, आई थिंक फाइनेंस के होंगे अब तो, मतलब मेरे ख्याल से हर फील्ड के होंगे। बट हो सकता है यार वो फील्ड वैसे ही इतनी लाइट वेटेड थी कि ठीक है, वो वैसे ही लोगों को इतना नहीं पता था। आर्ट एक वो वाहिद चीज थी कि जो लोगों को पता था कि यार ये तो हम, there are two people, there are people who are artists, there are people who admire with art। ठीक है, अब उनको पता था कि यार ये एक ऐसी चीज है जो हम कभी नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने कभी उसमें प्रैक्टिस नहीं करी, कभी भी वो उसमें पढ़ नहीं रहे होते। ठीक है, एंड देन वी कम अप विद अ पॉइंट जहाँ पे हमें गिबली इफेक्ट मिला। ठीक है, ऑल दो कि उससे वो हमारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या कुछ भी है। ठीक है, लेकिन लोगों को ये बात पता है कि ठीक है, हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, हमें ये स्टाइल की पेंटिंग मिल जाएगी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि वो सिर्फ एक स्टाइल नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक डिफरेंट रेट चल रही होती है, जहाँ पे आर्टिस्ट को ज्यादा इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि ज्यादातर उनकी फील्ड है जिनको समझा जाता था कि वो कभी नहीं किया जा सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें ना ये बेसिकली वैसा होता है जैसा आपने बताया था पहले अभी मैं आपको एक सेशन। बात बताती हूँ, सॉरी नो आपको नो, इंटरप्ट श्योर कर। श्योर श्योर श्योर। I recently had a client.
who reached out to me about a book cover. Right? She wanted a book cover made, and she strictly said, I don't want AI in my art. And then she ended up going for another freelancer. And then 2 days later, she came back to me and she's like, "Oh, this other freelancer was using AI despite me telling them strictly no AI. So can you please, help me out and are you interested in the project?" And I'm like, "Yeah, sure." So I'm just saying that there are people out there who still, value authenticity, who still value um, क्योंकि AI जो है ना, AI इज वेरी मेन स्ट्रीम. जैसे कि अगर आपने चलो AI से कोई इमेज निकाल भी ली, इट विल लुक लाइक इट्स बिन मेड फ्रॉम AI. एंड आई कैन टेल, वो जो अभी गिबली का जो AI आर्ट जो भी आया है सही है, so you can tell that okay, this is not an actual Ghibli art, it's AI generated Ghibli art if you have the eye to tell. But that's the same question ना, 90% of the people don't bother to have that thing. अगर किसी इंसान को कोई चीज चाहिए, मैं इसमें बहुत सारी क्लोज डिस्कशंस में ये भी कह सकता हूँ, या ये मैंने ऑफर दिया कि भाई अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको एआई कोई आर्ट बना के दे भी रहा है, वो आर्ट हो सकता है 4x6 10x10 इंचेस का हो, बट व्हाट इफ क्या अगर उसको एक बिलबोर्ड पे जाना है जो कि 50 फीट बाय 50 फीट का है, ठीक है, अगर वो हो सकता है कि उसकी मल्टीपल फॉर एग्जांपल मल्टीपल इटरेशंस बनानी हो, ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए नॉट ओनली इन प्रोडक्शन हाउसेज, नॉट ओनली कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, नॉट ओनली इन ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, आप रिपीटेटिव काम तो करा सकते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसी चीज को 100 बार लिख दो, ठीक है, वो हाँ. उसके लिए बंदे की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो टाइम सेव कर रहा है, ठीक है, लेकिन एवरी स्ट्रोक इज डिफरेंट. इट्स इज द बिगेस्ट डिबेट ऑफ व्हेन आईपैड कम इनटू प्लेस एंड रिप्लेसिंग वैकॉम्स, ठीक है, पीपल हैविंग डिबेट, जिनके पास वैकॉम था वो वैकॉम की साइड लेते थे, जिनके पास आईपैड था वो आईपैड की साइड लेते थे, बट आफ्टर अ वाइल थिंग्स आर गेटिंग सेटल कि ठीक है, देयर इज अ थिंग जो कि एक स्पेसिफिक चीज के लिए और देयर इज अ थिंग जो कि एक स्पेसिफिक चीज के लिए, ठीक है. Yes. वी हैव अ बिगर डिबेट ऑफ, अगर मैं एडिट पे बात करूं, वी हैव अ बिगर डिबेट. There are people who use DaVinci and there are people who use Premiere. ठीक है, लोग लोग कहते हैं कि DaVinci अच्छा है, लोग कहते हैं Premiere अच्छा है. मुझे ऐसा लगता है कि it's not about the tool, it's about the output result that you gonna have. ठीक है, Absolutely. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मरियम के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ मरियम मुझे XYZ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो फाइनल रिजल्ट जो है दैट मैटर्स अलॉट. आई डोंट माइंड कि उसके पीछे 100 लेयर्स हैं, 200 लेयर हैं या 1000 लेयर है, ठीक है, इफ द एंड प्रोडक्ट इज लुकिंग गुड तो वो अच्छी बात है, और शायद 90% लोगों को यही चीज का नहीं पता, इस वजह से वो मसला करती है. सो एक बात पे तो हम अलाइन कर सकते हैं कि एआई वोंट बी रिप्लेसिंग आर्टिस्ट, मे बी एआई विल रिप्लेस दोज पीपल हु वांट टू यूज अ स्पेसिफिक थिंग्स और अब उनको वो करना नहीं चाहते. AI has actually reduced a lot of time for artists. They don't realize that. You can get references through AI, you can get color palette inspiration, you can get so many things. ये जो आपने बात की कि repetitive tasks जो हैं वो अब artist के लिए आसान हो गए हैं, कि एक ही image की 100 iterations हैं, so you can just use AI for that, to save time. To get inspiration के, ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्रिएटिव ब्लॉक, समटाइम्स यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक थॉट, ठीक है, अब हो सकता है Pinterest पे या आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे वो रेफरेंस ना समझ में आ रहे हो, Hmm. तो यू माइट जस्ट पुट योर थॉट्स इन इट कि मुझे इस तरीके की चाहिए. यू माइट यूज मिड जर्नी और चैट जीपीटी और डीप सीक और एनी अदर जेमिनाई और एनीथिंग, ठीक है, और उससे आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है. टोटली अंडरस्टैंड द फैक्ट. अच्छा, अब देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद रिगार्ड्स टू के पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है, क्योंकि व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट एंड यू आर समवन हु वांट्स टू सेल योर स्टफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी एक पर्सनल प्रोफाइल होगी, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में किसी जगह पे एक कमरे में बंद हूं तो लोगों को नहीं पता चलेगा आपका, ठीक है, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप हम, क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं तो आपको आउटरीच पर होता है, आप लोगों के पास जा रहे होते हैं रादर देन के लोग आपके पास आ रहे हो, ठीक है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, ठीक है. अब बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ अलॉट ऑफ पीपल नाउ मूव टूवर्ड्स लिंक्डइन, ठीक है, Yeah. और उनको थोड़ा सा उस चीज को समझ में आ गया कि ठीक है नाउ लिंक्डइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट.
ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के एचआर ही हायरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हायरिंग बहुत कम हो रही होती है। हो सकता है कि कहीं पे आपके रेफरेंसेस हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जिस प्लेटफॉर्म पे हर कोई आप जॉब हंट कर रहा है या क्लाइंट हंट कर रहा है या रिसोर्सेज देख रहा है, वहां पे होना बहुत जरूरी है। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट योर लिंक्डइन? डू यू थिंक लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म? डज इट समवॉट हेल्प यू इन योर ओवरऑल करियर? व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई टिप? LinkedIn has been really helpful for me personally, क्योंकि जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी उसके बाद obviously being an artist I got sick of my job, then I started job hunting. तो तब मैंने LinkedIn बनाया था। और फिर उसके बाद मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली बिकॉज ऑफ माई पोर्टफोलियो एंड बिकॉज ऑफ माई रेज्यूमे। सो a lot of the time what I'm seeing on LinkedIn is that a lot of like amateur artists, what they do is they have a very boring resume. It's like, you know, no personal brand, no nothing, कि आप भाई अपने आप को you have to sell yourself, right? तो आपका resume इतना boring क्यों दिख रहा है? You know, हम्म, you have to like put up a picture there. चलो अगर picture नहीं है, you have to like at least put some colors in there. उसको there are so many, you know, free templates available online that you can use easily, like Canva हो गया। मतलब पर्सनल ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट तो है। Yeah, yeah, एंड एंड यू थिंक कि लोगों को करनी चाहिए? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को अभी तक देख रहा होता हूँ, उनको ऐसा लगता है कि लिंक्डइन इज ओनली समथिंग जब आपको कोई जॉब चाहिए होती है, जब आपको पाकिस्तान से बाहर जाना होता है। ठीक है, और जब आप आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे होते हो जिसमें आपको रीच आउट करना पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है तब आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पे एट अ टाइम अपनी प्रेजेंस रखनी चाहिए। that's फिर true. वो आर्ट स्टेशन हो गया, फिर वो behance हो गया, फिर वो लिंक्डइन हो गया, फिर वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एनीथिंग। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर गेटिंग बिजनेस दैट इज गुड फॉर यू। ठीक है, वो जरूरी नहीं होता। ठीक है। अच्छा, Hmm. एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, वो बहुत सारे लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग एन कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट या आर्टिस्ट, इट्स अबाउट हाउ टू रन अ बिजनेस। ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक यार प्रोजेक्ट ही सब कुछ चाहिए। ठीक है, व्हाट आई पर्सनली थिंक, प्रोजेक्ट से ज्यादा बेहतर चीज होती है इफ यू आर गोइंग ऑन अ रिटेनर बेस्ड क्लाइंट्स। ठीक है, यू डू समथिंग फॉर अ क्लाइंट एंड ट्राई टू अपसेल देम। Yes, ठीक है, yes. अ लॉट ऑफ पीपल यूजली थिंक ठीक है यार, 5,000 का काम आ गया, 10,000, 50,000 या वाइस वर्सा, जितने का भी काम आ गया वो काम करेंगे। बट वो उससे इस तरीके की कम्युनिकेशन बिल्डिंग नहीं कर पाते या उस तरीके से अपने आप को अपसेल नहीं कर पाते। एनी आइडिया, एनी टिप्स ऑन दैट? दैट वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। Okay, so you will get clients जो आपके पास बार बार आएंगे, you know, मगर वो बार बार क्यों आएंगे आपके पास? So number one thing is communication. You know, you have to see from the clients, like you have to put them in, put yourself in their shoes basically. और इस तरह नहीं कि ओ मेरा आर्ट है, you know you should look at this, नहीं आपको, you know, like I'm the best and you need me, no, why do they need you? आपको इस तरह देखना है उसको ना, कि what are their needs, what do they want, तो उस उसके हिसाब से देन यू नो टॉक टू योर क्लाइंट, यू पुट योर, जैसे वो नहीं, जब हम किसी से एम्पथाइज कर रहे होते हैं कि कोई हम अपना दुख हमारे साथ शेयर कर रहा होता है, तो हम अपना दुख नहीं बताने लग जाते, यू नो, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ओके, आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आई एम हियर फॉर यू, इस तरह। So, solution. So you are saying start providing the solution rather than just giving the idea कि ठीक है यार मैं कर सकता हूँ। क्योंकि या। अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं तो आप रिटेनर बेस पे ज्यादा लॉन्ग टर्म सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि हो सकता है कि किसी के पास हमेशा काम ना रहे। देन यू नीड टू ड्राइव योर थॉट प्रोसेस कि ठीक है, अगर आपने 2D वीडियो बनवा दी, व्हाई नॉट यू वांटेड टू डू द small animation for your social media, or maybe why not you wanted to rebrand your website, or maybe why not you rebrand your stationery or your brand work or anything else. यस। So that's the thing. And I think from my end I have we have covered a lot of things in the session. And the main idea is to get as much as industry professional like you guys, ताकि लोगों को पता चले it's not
हार्ड, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है। लोगों को ये लगता है कि स्टार्टिंग अ बिजनेस इज, यस इट इज, मतलब हार्ड, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपको आहिस्ता आहिस्ता सीखना पड़ता है। द एवरी थिंग इज पर्सन। पीपल वांट क्विक फिक्सेस, यू नो, उनको लगता है कि बस एकदम से हमारा बूम हो जाए, एकदम से हमें क्लाइंट्स मिलने लग जाए। ऐसे नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, you know, when you're on a weight loss journey, for example, it will take you time to, you know, lose that all of that weight. So especially people who are impatient, उनसे फिर नहीं हो पाता। So you मत have to give it, you have to be patient, you know। एग्री एग्री ऑन दैट पॉइंट कि ये बहुत जरूरी होता है और इसको समझना भी इसलिए जरूरी है। और कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने ऑप्टिमाइज करते रहना है अपनी प्रोफाइल्स को, आपने अपना पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज करते रहना है। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर स्किल्स, इवन लाइक फॉर 1 आवर, लाइक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स दे दो, यू नो, जस्ट एवरी। जस्ट अ स्मॉल थॉट, उस पे भी अगर हम बात करें, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट पर्सनली पीपल थिंक इज कि ठीक है यार, हमने डिग्री कर ली है या हमने कोई एक्स वाई जी कोर्स कर लिया है, अब हम प्रोफेशनल हो गए, ठीक है। आप उससे सेटिस्फाई हो या आप उस तरीके के लोग हो जहाँ पे आप कहते हो कि नहीं ठीक है यार, क्योंकि आई पर्सनली थिंक रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा होता है। और हम्म। फिर अगर आप सही में आर्टिस्ट हो या सही में आपको आपको लोगों से सीखने का शौक होता है, तो आप रोज कुछ सीख के सोचते हो कि ठीक है यार, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, नाउ आई हैव टू लर्न दिस थिंग एज वेल। ठीक है, और उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आर यू समवन हु ऑलवेज गिव प्लस के यार आपको कोर्सेज करने चाहिए, आपको डिफरेंट सेशंस वर्कशॉप्स लेनी चाहिए, ठीक है, जितना भी सीख सको, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स कम अप टू द पॉइंट कि प्रैक्टिस कितनी है आपकी। ठीक हम्म। है, समटाइम्स इट स्टार्ट लाइक कि आप शुरू में जब सर्कल बनाना शुरू करेंगे तो वो स्क्वायर जैसा लगेगा, और करते 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 यू स्टार्ट हैविंग दैट थॉट के एक भी स्ट्रोक आपका बहुत अच्छा लगने लग जाता है, लोगों को हम्म। एटलीस्ट, हमें ना लगी हुई तो, एज एन आर्टिस्ट ना लगे, लेकिन लोगों को उसकी क्रिएटिविटी समझ में आने लग जाती है। सो लास्ट थिंग दैट यू वांटेड टू डिस्कस, what are the platform that you think is good for learning and development? Are there any, do you someone who think is it's a positive thing कि learning and development रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? यस, आई एम अ बिग फैन ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। मैं खुद जो है 5 साल से अभी तक मैं सीख ही रही हूँ। और फ्यूचर में भी I'll keep on learning. I will never think that, you know, I know everything, because when you think that you know everything, that's where, you know, your development stops, and that should not happen. So there are platforms like YouTube pe you can learn a lot. You can find so many people, mashallah, that, you know, share their skills. And then there is this website called Line of Action. वहाँ से जो है आर्टिस्ट अपनी जो है ड्राइंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी स्पीड, ड्राइंग करने की जो स्पीड है, लाइक, यू नो, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो एंड, यू नो, लर्निंग फ्रॉम अदर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, जैसे मैंने किया अमीर अली से, यू नो, आई टुक अ वर्कशॉप फ्रॉम हिम, तो आई डिड गेट टू लर्न अलॉट फ्रॉम हिम एज वेल। तो यही है कि यू जस्ट, यू नो, कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल। Perfect. So I think that would be all from my end. And thank you, Mariam. Thank you so much for थैंक taking यू। our time. I'm pretty much sure कि a lot of people will get a lot of knowledge from it. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना एक अलग सा मिथ है उनके दिमाग में, उनको लगता है कि when they graduate things are like blood butterflies, but it's not like that. लोगों को हाँ। लगता है they graduate and big three companies will come and say like कि ठीक है यार आपने graduation कर ली, come will work with us. But it's not like that. But I'm pretty much sure after the session will Also, by the way, I forgot to mention that I am a textile design graduate. Like, this was never my favorite concept art. Yeah. ठीक है, मतलब it's as a matter of fact it's totally different. ठीक है, Yes. your degree and your work is not directly proportional. We have covered this topic a lot of times and I हाँ। really wanted to highlight that thing as well, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आपने अगर कोई चीज़ पढ़ी और जिंदगी भर आप वही करेंगे तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम्म। sometimes you start something and every year you evolve, every year you think कि नहीं यार this is something new, this is something new. So रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी आपको पता चलता है कि what are the right factors to work on yourself। क्या शायद हो सकता है आपको लगे कि यार मैं
टेक्सटाइल डिजाइनर बहुत अच्छी हूँ। अगर मैं ये सोचता कि आज से 4 साल पहले या 1-2 साल पहले मरियम सोचती हूँ टेक्सटाइल डिजाइनर अच्छी, तो आप शायद गुलामत में या किसी और कंपनी के अंदर टेक्सटाइल डिजाइनर होती, जो कि बिल्कुल अलग फील्ड है। ठीक है, बट यू टेक दिस पार्ट एंड आई थिंक दिस पार्ट इज वर्किंग very well for you, inshallah, and hopefully in the future as well. So thank you so much, Mariam. Thank you so much for your time. I'm pretty much sure we have covered a lot of topics that people will learn from it, and it's my pleasure to have you on session.